बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी MTH 251 में लेक्चर नंबर 30 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेनली कंसंट्रेट करेंगे ऑन कॉम्पैक्टनेस इन हाउसडॉर्फ स्पेसेस एंड देन वी विल डिफाइन एंड स्टडी लोकली कॉम्पैक्ट स्पेसेस। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में भी कॉम्पैक्ट स्पेसेस को स्टडी करते आ रहे हैं। आज हम कॉम्पैक्टनेस इन हाउसडॉर्फ स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉम्पैक्टनेस और हाउसडॉर्फ स्पेसेस में होल्ड करती हैं। हम लोकली कॉम्पैक्ट स्पेसेस को डिफाइन करेंगे और इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के फर्स्ट थ्योरम को लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ X इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस एंड दिस इज Y, a compact subspace of X such that the element X is outside Y, then X and Y can be separated by open sets. सो डियर स्टूडेंट्स, हम पिक्चर की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई स्पेस X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड दिस X इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हाउसडॉर्फ स्पेस को हम T2 स्पेस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, T2 स्पेस में जब भी हम पेयर ऑफ पॉइंट्स लें X में, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स सच दैट X इज नॉट इक्वल टू Y, तो फिर एग्जिस्ट करते हैं ओपन सेट्स U एंड V belonging to such that X belongs to U and Y belongs to V and further U intersection V is equal to phi। इनको हम disjoint open sets बोलते हैं dear students। Okay, this U and V are called disjoint open sets. So dear students, इस स्टेट में X is a हाउसडॉर्फ space. Dear students, Y is a compact subspace. So here there is Y. This is a subspace. It means this Y, which is a subset of X, this Y originally, which is a subset of X, has relative topology tau Y. Okay, this is a relative topology. If it is a relative topology, then it is a subspace, otherwise it is no more subspace. So this is a subspace and it is given that this subspace is compact. This is compact subspace, right? Dear students, the ground space is a hausdorff space only. It is a T2 space, whereas subspace is compact such that compact subspace of X such that X is outside Y. So because this is Y and this is X minus Y and this X is outside Y, that is in the X, then X and Y can be separated by open sets. Okay, then X and Y can be separated by open sets. Separated by open sets meaning that कि हम ओपन सेट्स ढूंढ सकते हैं U और V belonging to such that X belongs to U and Y is contained in V, right? And U intersection V is equal to phi। जब हम ऐसे डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ सकें कि X U को कंटेन करे, Y जो है वो V के अंदर लाई करे और U इंटरसेक्शन V phi हो, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस बात को मैथमेटिकली यूं बोलते हैं कि X and Y कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स। ओके, हियर वी हैव एन ओपन सेट से U
x belonging u, there is an open set, say V, okay, such that y is contained in V and u intersection V is equal to phi. This means x and y can be separated. So dear students, this is an important statement. हम अपने next theorem में भी इस statement को use करेंगे. So dear students, once again इस theorem के अंदर जो हमें given information है, number 1 ये given information है कि x is a T2 space, is a house door of space. Dear students, second information हमें ये given है कि y is a compact. Dear students, second information ये given है कि y is a compact subspace. Right, dear students? Third information ये given है dear students कि x belongs to capital X minus y. It is outside y. It is that is x does not belongs to y. y में नहीं है तो x में है. This is outside y. So then with these three informations, then dear students, prove ये करो. Then prove ये करो, then x and y can be separated. Then prove that x and y can be separated. Dear students, इस चीज को prove करने के लिए, that is show there exist open sets u and v such that x belong करे u को, y contain करे v के अंदर and u intersection v is equal to phi. तो इसका मतलब ये है कि x and y can be separated by open sets. Right, dear students? तो इस थ्योरम में डियर स्टूडेंट्स वी आर गिवन विद थ्री इंफॉर्मेशंस कि x इज ए हाउस डोर ऑफ स्पेस यानी T2 स्पेस, यानी जब भी पेयर ऑफ डिस्टेंट पॉइंट्स लेंगे तो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, y हमें कॉम्पैक्ट सबस्पेस दी हुई है. इसका मतलब है कि जब भी y की ओपन कवरिंग लेंगे हमारे पास फाइनाइट सब कलेक्शन एग्जिस्ट करेगी जो दोबारा y को कवर करेगी. और तीसरी इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स हमें ये दी हुई है कि जो पॉइंट x है वो आउटसाइड y है, वो x को बिलोंग करता है लेकिन y को बिलोंग नहीं करता. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये शो करना है कि देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स u and v such that x belongs to u and y is contained in v where u intersection v is equal to phi. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रूफ की तरफ जाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ. चूंकि डियर स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट इफ के साथ स्टार्ट हो रही है, इफ दिस 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 तो देन दिस, लिहाजा हम पहले जो चीज़ें इफ हैं कंडीशनल हैं कि अगर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो तो देन ऐसा होगा, तो हम उस इफ को लेट करते हैं. लेट नंबर 1, लेट x be a house door of space. And let y ta y with the relative topology be a subspace of x. Okay, dear students, let x belongs to x minus y. Correct, dear students? We further let y belongs to y. Okay, dear students, so this is the situation, dear students, further that we have x
with topology ta is a T2 space. Dear students, we have y, okay, with topology ta y. Okay, we are taking y over here, we have x over here because this is x minus y. Okay, dear student, so this gives that x is different from y. Okay, now xy belongs to, x is different from y, but x and y are members of x, and capital X is a T2 space. So this implies there exist open sets. हम उन ओपन सेट्स के नाम रख लेते हैं, Gx and Hy such that क्या कि x belongs to Gx, y belongs to Hy, and Gx intersection Hy is equal to phi. Dear students, क्यों ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे? इसलिए ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे कि x इज ए T2 स्पेस, लिहाजा जब भी इसमें डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स लेंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस आपको याद है कि हमारे पास ये x टा है, ये T2 स्पेस है, इसमें ये हमारे पास y है, हमें मालूम है कि दिस इज कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट है, हमें एक पॉइंट हमने x इसमें लिया है, हमने एक पॉइंट y इसमें लिया है, और यही वजह है कि ये हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट किए हैं. Gx ने इसको कंटेन किया है और Hy ने इसको कंटेन किया है. Okay, dear students, Gx belongs to this and Hy belongs to this, and Gx intersection Hy is 0. Thus, dear students, for y belonging y, जब भी मैं y का कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो x से मुख्तलिफ होगा, राइट, वो x से मुख्तलिफ होगा. अब जब y के डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे तो मेरे पास ये Hy डिफरेंट आ सकते हैं. ओके, ये Hy डिफरेंट आ सकते हैं जो कि Gx के साथ उनका इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा. वी ऑब्टेन ओपन सेट्स Hy such that this y which is equal to y belonging y, okay, this is collection of these y's, and each y is contained in, this is union of. This is union of y belonging y, this is contained in union of Hy, okay, such that y belongs to y. Okay, so this gives that Hy such that y belongs to y is cover of y by sets open in X
डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि जब भी सब स्पेस की कवरिंग बाय ओपन सेट्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती हो तो फिर इसकी फाइनाइट सब कवरिंग बाय ओपन सेट्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है जो कि इसको कवर करती हो अगर वाई जो है वो कॉम्पैक्ट है. सो सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट, since y is compact, therefore there exists a finite subcollection say hy1, hy2, hyn such that what this y is contained in union of I is equal to 1 to n h y I. Okay, dear students, so this gives that if I call this union is equal to, for example, if I call this is equal to h, then H is an open set being union of open sets. Being union of open sets. Okay, dear students, this implies y is contained this open set. Correspondingly, dear students, in hy1, hy2, hyn के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास y1, y2, yn जो y के एलिमेंट्स हमने ऐसे ढूंढ लिए हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ओपन सेट्स हैं उनकी यूनियन जो है वो फाइनाइट सब कवरिंग फॉर y कंस्ट्रक्ट करती है. तो इन y1, y2, yn के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो hx1 जो हमारे पास gx1, gx2, gxn एग्जिस्ट करेंगे, right, containing x, correspondingly we get gx1, gx2 and gxn containing containing x. This implies correspondingly we get gx1, gx2, gxn containing x. Okay, put this intersection I is equal to 1 to n gxi is equal to g. Then, dear students, G is open, being finite intersection of open sets, and x belongs to G, y is contained in H, and dear students, G intersection H is equal to phi, that is G and H are separated by open sets. Okay, that is x and y, that is x and y are separated
by open sets. Dear students, this completes the proof. Dear students, let's discuss it again. Dear students, हमने ये नोटिस किया कि हमारे पास जो ग्राउंड स्पेस है x वो हाउसडॉर्फ स्पेस है, लिहाजा इसमें जब भी हम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे तो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने x माइनस वाई में एक पॉइंट x को फिक्स कर लिया. राइट डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर आपके लिए दोबारा पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करता हूं. दिस इज स्पेस x टा, ओके. दिस इज a T2 space, okay. This is a space y which is a subspace which is compact. This is x minus y. हमने इसमें एक पॉइंट x को फिक्स कर लिया. इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं डिफरेंट, ओके. हम इस y में जो भी पॉइंट लेंगे वो पॉइंट, डियर स्टूडेंट, वो पॉइंट इस x से मुख्तलिफ होगा. जो भी पॉइंट हम y में लेंगे वो पॉइंट इस x से डिफरेंट होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम पॉइंट, ओके डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग. Okay dear students, so here it is the situation. This is x and tau. This is a T2 space. Dear student, it has a subspace that is y. It is compact. It may have infinite many elements. डियर स्टूडेंट, हमने इसमें एक पॉइंट x जो है वो फिक्स कर लिया है. जो x हमने फिक्स किया है वो हमने x माइनस वाई में ले लिया हुआ है. ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट y जो है वो y में लिया है. जब हमने y पॉइंट y में लिया है, हमने y जो पॉइंट है वो जब y में लिया है डियर स्टूडेंट, तो देन दिस x इज डिफरेंट फ्रॉम y. अब जब ये x y डिफरेंट हो गए हैं, तो चूंकि हमारे पास x जो है वो T2 स्पेस है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर गए हैं. ओके, एक को हमने gx का नाम दिया है और दूसरे को हमने hy का नाम दिया है. कैसे ओपन सेट्स हैं कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है. दिस इज इक्वल टू फाई. एंड क्या है कि x जो है वो gx को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो ghy को बिलोंग कर रहा है. राइट डियर स्टूडेंट. डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैंने इसका एक पॉइंट लिया सपोज y1, फिर मैंने इसका एक पॉइंट लिया y2, फिर मैंने इसका पॉइंट लिया y3. अब जब भी मैं, इधर से मेरे पास x रहता है, इधर से मेरे पास y1 आ जाता है, इधर से मेरे पास x रहता है, इधर से मेरे पास y2 आ जाता है, इधर से x ही रहता है, इधर से y3 आ जाता है, एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट, इधर से मेरे पास gx1 आता है और hy1 आता है, इधर से मेरे पास gx2 आता है और hy2 आता है, एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट, y के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं उन तमाम की यूनियन ले लूं, कौन से y, वो वाले y जो कि बिलोंग कर रहे हैं y को, राइट, ये मेरे पास पूरा सेट y बन जाता है. और मैंने देखा कि हर y जो है वो hy के अंदर लाई करता है, तो लिहाजा ये सब कलेक्शन बन जाती है यूनियन ऑफ hy की. लेकिन ये याद रहे कि y जो है उसको y में होना चाहिए. ओके, तो फिर चूंकि ये मेरे पास ओपन सेट्स हैं x में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो मेरे पास है hy such that y belongs to y, ये मेरे पास कवरिंग बन जाती है किसकी, ऑफ y की, बाय सेट्स ओपन इन x. अब चूंकि सिंस y इज कॉम्पैक्ट,
डियर स्टूडेंट, चूंकि y कॉम्पैक्ट है लिहाजा मेरे पास फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी। उसको हमने नाम दे दिया है एच वाई आई और i इज इक्वल टू 1 to n। इसी में रीनंबरिंग की है हमने। अगर ये इनफाइनाइट कलेक्शन थी तो उसमें से फाइनाइट कलेक्शन आई है जिसका यूनियन जो है उसने y को कवर किया है। अब चूंकि ये ओपन सेट्स हैं लिहाजा पहली बात यह है कि इनका यूनियन जिसको नाम h का दे दिया है वो ओपन होगा। एक बात हो गई डियर स्टूडेंट्स। सेकंड बात ये हो गई कि अब जो मैंने ये फाइनाइट y1 y2 y3 एंड सो ऑन चूज कर लिए हैं, अब सिर्फ इन फाइनाइट सेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने gx1 इसका इंटरसेक्शन hy1 से फाई होगा। क्यों? This is actually not gx1, this is actually gx, okay? gx intersection gy1 is equal to phi। अब ये जो gx है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको gx1 इसलिए कह रहे हैं कि दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम gx, may be different from gx, so उसको gx1 कह दिया, अगरचे ये corresponding to x ही है। इसी तरह से gx2 इसे कह दिया है this will be hy2 से इसका इंटरसेक्शन फाई होगा। डियर स्टूडेंट, ये भी नेबरहुड x का ही है, ये भी नेबरहुड x का ही है, ओके। चूंकि देखिए कि जिस वक्त मैंने एक नेबरहुड लिया, ओके, आई कंस्ट्रक्ट एन अदर फिगर फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सिचुएशन कि मेरे पास ये y है, ओके। मेरे पास अगर y1 इस जगह पे पड़ा हुआ है और x चूंकि इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये वाला नेबरहुड जो है, सपोज x का जो मैंने लिया है, इस x का नेबरहुड जिसे मैंने gx कहा है, ये इस नेबरहुड से hy1 से डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट y2 अगर यहां पे पड़ा हुआ है तो फिर इस y2 से ये डिफरेंट नहीं है, राइट? y2 से डिफरेंट नहीं है। अब y2 के लिए इसी पॉइंट का जो नेबरहुड होगा कोई और नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि hy2 से डिफरेंट होगा, राइट डियर स्टूडेंट? सो इसी x का एक और नेबरहुड gx3 एग्जिस्ट किया जो hy3 से एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। लिहाजा जब मैंने इन तमाम gx1, gx2, gx3 इनके इंटरसेक्शन ले लिया, ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n gxi, तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट नेबरहुड बन जाएगा। x अभी भी इसको बिलोंग कर रहा होगा और इसको मैंने g का नाम दे दिया। चूंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है तो ये वापस ओपन होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा और इसका इंटरसेक्शन इस h से, जो कि मैंने इधर यूनियन लिया हुआ है, इस g का इंटरसेक्शन इस h से फाई के इक्वल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यही रीज़न है कि h के लिए तो हमने यूनियन लिया है और g के लिए हमने इंटरसेक्शन लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, right dear students, we have another theorem that every compact subspace of a Hausdorff space is closed. Every compact subspace of a Hausdorff space is closed. Dear student, recall, इससे पहले हमने ये प्रूव किया हुआ है कि compactness is a closed heredity property. हमने ये प्रूव किया हुआ है कि compactness is a closed heredity property. Recall, ठीक है? Previously, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रूव किया है, recall,
compactness is a closed हेरिडिटी प्रॉपर्टी। क्या मतलब था डियर स्टूडेंट? इसका मतलब ये था कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। राइट डियर स्टूडेंट? राइट डियर स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अभी हम क्या करने लगे हैं? अभी हम ये करने लगे हैं कि हमारे पास अगर every compact subspace of a Hausdorff of space is closed। अब हम ये प्रूव करने लगे हैं कि अगर हमारे पास स्पेस जो है वो हाउसडॉर्फ है और इसकी जो सब स्पेस है वाई वो कॉम्पैक्ट है, वो कॉम्पैक्ट है, सब स्पेस कॉम्पैक्ट है, तो फिर ये इंप्लाई करती है कि ये क्लोज्ड होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इधर हमने क्या किया था? इधर हमने ये किया था कि अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट है अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा ये कॉम्पैक्ट है और इसकी जो सब स्पेस है वाई वो क्लोज्ड है, तो फिर ये इंप्लाई करेगी कि ये कॉम्पैक्ट है। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम ये जो थ्योरम किया था वो ये था। ओके, क्लोज्ड हेरिडिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर स्पेस कॉम्पैक्ट है, सब स्पेस क्लोज्ड है, तो ये इंप्लाई करेगी कि फिर ये कॉम्पैक्ट भी है। एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अभी का थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास स्पेस हाउसडॉर्फ है और सब स्पेस कॉम्पैक्ट है तो फिर वो क्लोज्ड होगी। पहले क्लोज थी तो प्रूव किया कॉम्पैक्ट होगी, अब कॉम्पैक्ट है तो प्रूव करने लगे हैं कि क्लोज्ड होगी। राइट डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त ग्राउंड स्पेस हमें कॉम्पैक्ट दी हुई थी, अभी ग्राउंड स्पेस हमें हाउसडॉर्फ स्पेस दी हुई है। Okay, so dear students, it is important to understand the statement of the theorem कि closed heredity property में space हमें compact given थी, subspace हमें closed given थी। This was given compact, this was given closed। हमने प्रूव किया था कि ये compact होगी। अभी डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन स्पेस जो है वो T2 है, हाउसडॉर्फ है, हमें गिवन स्पेस जो है वो सब स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट है। हम प्रूव करने लगे हैं कि ये क्लोज्ड होगी। राइट डियर स्टूडेंट? सो डियर स्टूडेंट, लेट्स गो फॉर द प्रूफ। Every compact subspace of a Hausdorff space is closed. So let X star be a Hausdorff space. Okay, let y ta y be a compact subspace of X
we prove that this y is closed subset of X. Okay, dear student, for this we shall prove that y complement, which is equal to x minus y, is open in X. Okay, dear students, हम ये प्रूव करेंगे कि दिस इज ओपन इन एक्स, राइट। इसको ओपन इन एक्स प्रूव करने के लिए हम इसका एक पॉइंट लेते हैं आर्बिट्ररी, लेट x बिलोंग्स टू x माइनस वाई। ओके, इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है। हम देखते हैं कि क्या कोई ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इसके अंदर लाई करता हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है इसका जो भी पॉइंट लेते हैं वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, गोया कि ये सेट हमारे पास ओपन है। और अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट गोया कि y जो है वो क्लोज्ड है। ओके, इट मीन्स दैट इज दिस मीन्स दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम रिकॉल करते हैं प्रीवियस थ्योरम को जो अभी हमने इससे पहले किया है। डियर स्टूडेंट, वो थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास x जो है वो हाउस-डॉर्फ स्पेस है और y हमारे पास कॉम्पैक्ट सब स्पेस है। ओके, अभी जो हमने थ्योरम किया है वो ये था, डियर स्टूडेंट, आई जस्ट राइट इट फॉर यू, कि इफ X is a T2 space and Y is a compact subspace of X. If X does not belongs to Y, then X and Y can be separated by open sets. Right, dear students, so this was the statement of the theorem कि अगर हमारे पास X हाउस-डॉर्फ स्पेस हो और Y हमारे पास कॉम्पैक्ट सब स्पेस हो और अगर पॉइंट आउटसाइड द y हो तो फिर x एंड कैपिटल Y कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स। अभी की सिचुएशन अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास x हाउस-डॉर्फ स्पेस है, y हमारे पास कॉम्पैक्ट सब स्पेस है और हमने पॉइंट आउटसाइड y ले लिया है, तो देन लेट x बिलोंग्स टू दिस, देन हम इस थ्योरम की हेल्प ले रहे हैं, देन x एंड y कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स say G and H, that is X belongs to G, Y is contained in H and G intersection H is equal to phi. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, X belongs to G, Y is contained in H
and G intersection H is equal to phi. Dear students, जिस वक्त Y intersection H equal to phi है, तो this implies that X belongs to G and this G is definitely contained in X minus Y, right? This is contained in X minus Y. So हमने जो एक आर्बिट्रारी पॉइंट x माइनस वाई का लिया था, हमने शो कर दिया कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जो इस x माइनस वाई के अंदर लाई करता है. तो इसने इम्प्लाई किया कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ x माइनस वाई. और चूंकि दिस वाज एन आर्बिट्रारी पॉइंट, इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट इसका हम चूज करते हैं वो इसका इंटीरियर पॉइंट आ जाता है. सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज एन ओपन सेट. और अगर ये हमारे पास ओपन सेट है तो दिस इंप्लाइज इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारे पास y बनेगा इज ए क्लोज्ड set. Right, dear students, this completes the proof. Right, dear students, let's go for another theorem. Dear students, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसकी डिस्कशन करते हैं और फिर इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, हियर f from x to y be a bijective continuous function. So f is bijective, it is 1 1, it is on 2, it is continuous. X is compact and y is Hausdorff. Then we need to prove that f is a homeomorphism. Right, dear student? Dear students, the situation is like this. Here we have x, I call x with topology. Here we have some set y with some topology tau y. We have a function f from x to y. This function is 1 1. This function is onto, and number 3, this function is continuous. If x is compact, dear student, this is compact, this is compact. Dear students, and y is Hausdorff, this is T2 space. Okay, dear students, with all these informations, then तो prove ये करो कि f is homeomorphism. Dear student, recall, आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी मैपिंग जो है वो होम्योमॉर्फिज्म बनती है अगर f हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो, f इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस, f is bijective. बाइजेक्टिव, जब भी कोई फंक्शन बाई कॉन्टिन्यूस बाइजेक्टिव होता है तो वो होम्योमॉर्फिज्म होता है फ्रॉम स्पेस एक्स टू स्पेस वाई. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में हमने ये प्रूव करना है कि f इज होम्योमॉर्फिज्म. डियर स्टूडेंट, इसमें हमें f ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें f ऑलरेडी बाइजेक्टिव दिया हुआ है. इट इज गिवन दैट f इज बाइजेक्टिव, लेट f बी ए बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये बाइजेक्टिव भी दिया हुआ है,
ये कॉन्टीन्यूस भी दिया हुआ है। सिर्फ जो चीज़ रहती है वो ये है कि एफ इनवर्स इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स भी कॉन्टीन्यूस है तो फिर ये मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमें एक्स कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, हमें वाई जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस दी हुई है। हमने इस मैपिंग को, जो मैपिंग बाइजेक्टिव और कॉन्टीन्यूस दी हुई है, इस मैपिंग को हमने होम्योमॉर्फिज्म शो करना है। और जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि इसे होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ इनवर्स इज कॉन्टीन्यूस। अब डियर स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स को कॉन्टीन्यूस प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि जिस वक्त भी हम दिस इज एफ इनवर्स, इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करने के लिए मुझे ये शो करना होगा कि मैं जब भी इसके अंदर ओपन सेट लेता हूं तो उसका इमेज अंडर एफ इनवर्स इसमें ओपन आता है, या अगर मैं इसमें क्लोज्ड सेट लेता हूं तो उसका इनवर्स इमेज अंडर दिस फंक्शन वो इसमें क्लोज्ड आ जाता है। राइट डियर स्टूडेंट, अगर हमने ये शो कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन एफ इनवर्स जो है ये कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन डियर स्टूडेंट, फंक्शन एफ कब कॉन्टिन्यूस होता है कि जब इसकी रेंज में ओपन सेट का इनवर्स इमेज इसकी डोमेन में ओपन आ जाए। एफ इनवर्स कब कॉन्टिन्यूस होगा? जिस तरफ को ये मैप कर रहा है। ओके, इसमें हम ओपन सेट लें, उसका इनवर्स इमेज इसमें ओपन शो करें, या इसमें क्लोज सेट लें, उसका इनवर्स इमेज इसमें क्लोज शो करें। लिहाजा अगर इस जगह पर मैं एक क्लोज सेट एफ लेता हूं और मैं ये शो करता हूं कि इस सेट का इनवर्स इमेज अंडर दिस, अब एफ इनवर्स का इनवर्स इमेज एफ, सो दैट इज, इसका मतलब है एफ ऑफ एफ। मुझे शो करना है कि दैट इज क्लोज्ड ओवर हेयर। ओके, इसमें मैंने एफ को क्लोज ले लिया है। इस मैपिंग के तहत इनवर्स इमेज जो कि बन जाएगा एफ ऑफ एफ, उसे मैंने इस वाई के अंदर क्लोज्ड शो करना है। ओके, ये लेट करना है क्लोज्ड, ये शो करना है क्लोज्ड। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो एफ ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, तो ये तीनों बातें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर ये एफ जो है ये होम्योमॉर्फिज्म बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? सो हम इसको होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसमें जो भी क्लोज सेट लेते हैं उसका इमेज इसमें क्लोज आ जाता है। नाउ दिस इज इमेज अंडर एफ, उसका इमेज इसके अंदर भी क्लोज आ जाता है। अगर मैं इसमें आर्बिट्ररी क्लोज सेट का अंडर एफ इमेज इसमें क्लोज शो कर देता हूं तो एक्चुअली मैंने एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो कर दिया होगा। Right dear students, so let's go for the proof. To prove that F is homeomorphism, we need to prove only that F inverse is continuous. Right dear students? Now to prove
F inverse continuous, we need to prove only that F is a closed mapping. Right, dear student? Closed mapping ऐसी मैपिंग होती है जो क्लोज सेट के इमेजेस क्लोज दे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी के लिए इतना सफिशिएंट है कि मैं एक्स में क्लोज सेट दूं और शो करूं कि उसका इमेज क्लोज्ड है, तो ऐसी मैपिंग को क्लोज मैपिंग कहते हैं। सो एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए इस जगह पर यह सफिशिएंट है कि मैं एफ को क्लोज मैपिंग शो कर दूं। ओके, फॉर दिस, इसको क्लोज शो करने के लिए, फॉर दिस ये शो करने के लिए कि ये क्लोज मैपिंग है, सेमीकोलन, लेट कैपिटल F be a closed subset of X. राइट डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर सारी सिचुएशन को दोबारा डिपिक्ट करते हैं ताकि पिक्चर सामने हो और इसको हम डिस्कस कर सकें। डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज X and ta according to the given statement, dear student. So this is, dear student, this is y and this is ta x and this is ta y. Dear students, we are given that this F is bijective plus continuous. Dear student, X is given compact. Dear student, Y is given T2 space. What we have done, dear student, we have taken a closed set F over here. This is a closed set, closed subset of X. डियर स्टूडेंट, आपको खूब याद है कि कॉम्पैक्टनेस जो है इसकी क्लोज्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है कि इसका जो भी क्लोज सबसेट लिया जाता है, डियर स्टूडेंट, वो कॉम्पैक्ट होता है। तो लेट एफ बी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट, therefore F is a compact subspace of X. Right, dear student? Because दिस X इज कॉम्पैक्ट, इसमें जो भी क्लोज सबसेट लेंगे वो इटसेल्फ कॉम्पैक्ट सबस्पेस बन जाएगा। चूंकि F को इसका क्लोज सबसेट लिया है और X चूंकि कॉम्पैक्ट गिवन है, लिहाजा ये हमारे पास कॉम्पैक्ट सबसेट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज कॉम्पैक्ट होता है या कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट होता है। Since F is continuous, therefore F of F, चूंकि F जो है हमारे पास कॉम्पैक्ट हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस है, तो F of F is compact subset of HAUSDOR of space Y. राइट डियर स्टूडेंट, इसका जो इमेज है वो हमारे पास इस जगह पर आया है। दिस इज F of F
और दिस इज कॉम्पैक्ट। क्यों डियर स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट? इसलिए कि f इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज क्लोज्ड, बीइंग क्लोज सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इट इज कॉम्पैक्ट। और चूंकि f कॉन्टिन्यूस है लिहाजा इसका इमेज दैट इज f ऑफ f इज कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट सबसेट किसका है? हाउसडोर्फ स्पेस का है। डियर स्टूडेंट, अभी इससे पहले हमने थ्योरम अटेम्प्ट किया है कि हाउसडोर्फ स्पेस के अंदर जो कॉम्पैक्ट सबसेट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स कि हाउसडोर्फ स्पेस में जो कॉम्पैक्ट सबसेट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ओके, सो दिस इंप्लाइज f of f is a closed subset of y because every compact subset of a Hausdorff space is closed। Dear students, हमने ओरिजिनली f को x में क्लोज लिया था और हमने शो कर दिया है कि इसका इमेज y में हमारे पास क्लोज्ड आ गया है, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज ए क्लोज्ड मैपिंग। Dear student, this implies f inverse is continuous। Dear student, f was continuous in the given statement, f was bijective in the given statement, f inverse is continuous, so hence we conclude that f is a homeomorphism। Okay dear students, so this completes the proof, right dear students? It is an interesting and important result. Dear students, we define a locally compact space. Dear students, first we were discussing compact spaces and now we define a locally compact space. Dear student, a space X is said to be locally compact at X belonging X. So this is a local property. So हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जो ग्राउंड सेट X है उसका कोई पॉइंट X ले लिया है। हम कह रहे हैं कि ये स्पेस X जो है ये इस पॉइंट X पर लोकली कॉम्पैक्ट होगी। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्पेस X इज सेड टू बी लोकली कॉम्पैक्ट एट X बिलोंगिंग X। तो ये स्पेस कैपिटल X, it will be locally compact at X belonging X, dear students, if there is some compact subspace Y of X that contains a neighborhood of X. Okay, dear student, let's see हमने क्या बोला है। हमने कहा है कि ये स्पेस है हमारे पास, this is a space X and tau, right dear student? हमने इसका कोई आर्बिट्ररी पॉइंट X लिया है। हमने कहा कि ये स्पेस लोकली कॉम्पैक्ट एट X होगी, इस पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट होगी अगर हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सबस्पेस Y एग्जिस्ट करे। हमने क्या कहा कि Y जो कि कॉम्पैक्ट हो और वो इस पॉइंट पर किसी नेबरहुड को कंटेन करती हो। ओके, कि X जो है वो अपने नेबरहुड को बिलोंग करे और ये किसी कॉम्पैक्ट सबस्पेस के अंदर लाई करे। व्हाट इज दिस? दिस इज नेबरहुड ऑफ X, मे बी ओपन सेट, बिकॉज ऑल ओपन सेट्स जो कि X को कंटेन करता हो वो अपने पॉइंट्स के नेबरहुड्स होते हैं। सो X बिलोंग्स टू एन ओपन सेट U जो कि इसका नेबरहुड बन जाएगा, एंड दिस U इज कंटेन्ड इन Y वेयर व्हाट इज Y? Y शुड बी कॉम्पैक्ट। डियर स्टूडेंट, हमने X की कोई बात नहीं की। X एंड tau, दिस इज एन ऑर्डिनरी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये लोकली कॉम्पैक्ट होगी इस पॉइंट पर
अपने किसी पॉइंट x के ऊपर, ये लोकली कॉम्पैक्ट होगी। अगर हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस एग्जिस्ट करे y, जो कि इस पॉइंट पर किसी नेबरहुड को कंटेन करती हो। ओके, इफ देयर इज सम कॉम्पैक्ट सबस्पेस y of x that contains a neighborhood of x, okay, then such a space, then x is said to be locally compact at x belonging x। और अगर ये अपने हर पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट हो, हर पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट हो, हर पॉइंट पर हम उस पॉइंट का नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्पैक्ट सबस्पेस ढूंढ सकें जो उस के नेबरहुड को कंटेन करती हो सबस्पेस, तो हम ऐसी स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लुक, इफ x इज लोकली कॉम्पैक्ट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने हर पॉइंट के ऊपर वो लोकली कॉम्पैक्ट है, तो देन दिस इज सिंपली कॉल्ड लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि एक पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट हो और दूसरे पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट ना हो, तो फिर वो लोकली कॉम्पैक्ट नहीं होगी, बल्कि लोकली कॉम्पैक्ट एट ए पॉइंट वेयर इट इज लोकली कॉम्पैक्ट। राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूं कि हमारे पास स्पेस है, दिस स्पेस इज ऑर्डिनरी टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने इसका कोई ऑर्डिनरी पॉइंट लिया है, हमने इसका एक नेबरहुड लिया है, इस नेबरहुड को मैं u कह देता हूँ, ux कह देता हूँ। अगर मैं एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस ढूंढ सकूं, कॉम्पैक्ट सब स्पेस ढूंढ सकूं, चाहे मैं इसको कभी y के साथ नाम दूंगा, कभी c के साथ नाम दूंगा, ये कॉम्पैक्ट हो, मैं कॉम्पैक्ट सबस्पेस y ढूंढ सकूं कि x जो है ये अपने नेबरहुड को बिलोंग करता हो, चूंकि हमेशा बिलोंग करेगा, और इसका नेबरहुड इसके कॉम्पैक्ट सबस्पेस के इनसाइड में लाई करता हो, तो फिर हम कहेंगे कि स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट एट द पॉइंट x। ओके, इस पॉइंट पर नेबरहुड को एक कॉम्पैक्ट सबस्पेस कंटेन करती है, लोकली कॉम्पैक्ट एट द पॉइंट x। और अगर ये अपने हर पॉइंट पर लोकली कॉम्पैक्ट है, तो space will be known as locally compact space. Okay, dear students, here we have a important remark that every compact space is locally compact, but converse is not true in general. Dear student, जब भी कोई space compact होगी तो वो locally compact भी होगी। Okay, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि compact space implies locally compact। लेकिन इसका कन्वर्स जो है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास इफ x स्टार इज कॉम्पैक्ट, if x star is compact, right dear student, so this is the space which is compact। okay, this is x star, this is compact। dear student, इस सूरत में मैं जो भी पॉइंट लूं और उसका जो भी नेबरहुड लूं, वो नेबरहुड जो है अल्टीमेटली कम से कम इस x के अंदर लाई कर रहा है, x ux को बिलोंग कर रहा है, जो भी नेबरहुड होगा, एंड दिस इज ऑलवेज कंटेन्ड इन x एंड दिस इज कॉम्पैक्ट। राइट, तो इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट का नेबरहुड किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, चूंकि बजाते खुद अपनी सब स्पेस है ना ये x, और कॉम्पैक्ट भी है। तो दिस इंप्लाइज कि जब भी ये कॉम्पैक्ट है तो ये हमारे पास लोकली कॉम्पैक्ट भी है। राइट डियर स्टूडेंट, इट मीन्स कि एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। अगर इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करें तो हम लेट करते हैं कि लेट
X star be a compact space. Then for each X belonging X, the neighborhood of X is contained in X. Dear student, X से बाहर तो कोई नेबरहुड जा नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो ग्राउंड सेट है ना हमारा. सो इसका जो भी नेबरहुड लेंगे वो कंटेन्ड इन X होगा. ओके ओके. सो इसने क्या इंप्लाई किया कि फॉर ईच X बिलोंगिंग X there exists a compact space which contains a neighborhood of X. ठीक है, हर X के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्पैक्ट स्पेस जो कि बजाते खुद X है वो एग्जिस्ट कर रही है, जो कि इस पॉइंट के नेबरहुड को कंटेन करती है. तो दिस इंप्लाइज X इज लोकली कॉम्पैक्ट. राइट डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल. The real line R is locally compact. Remember, it is not compact. Dear students, real line R with the usual topology is not compact. Okay, but it is locally compact. Okay, how it is locally compact? Let's see. The point X lies in some interval. इस real line के ऊपर Dear students, मैं जो भी पॉइंट लूं, ये पॉइंट इसमें अगर मैं x प्लस एप्सिलॉन करूं तो मुझे ये मिलेगा, और अगर x माइनस एप्सिलॉन करूं तो मुझे ये मिलेगा, वेयर एप्सिलॉन इज नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी. सो दिस इज x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन रियल लाइन पर ओपन इंटरवल है. ये इस पॉइंट का नेबरहुड है. ओके, this contains the point X. So this is neighborhood of the point X. This is neighborhood of the point X. Okay, and further this is which in turn contain in the compact subspace. Dear student, this is close bracket. Okay, dear student, this is contained in x minus epsilon and x plus epsilon. Dear student, आपको मालूम है कि ये ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये क्लोज इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑन रियल लाइन every closed and bounded subset of R is compact. Right dear students, so this is compact. तो हम जो भी पॉइंट लें उसका नेबरहुड एक कॉम्पैक्ट सबसेट में कंटेन हो जाता है. ओके, हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, लाइक दिस x minus epsilon and x plus epsilon, and this is always contained in the closed interval x minus epsilon and x plus epsilon. Right dear students, and real line पे closed and bounded subset of R जो होता है वो compact होता है. This is closed and this is bounded as well, so it is compact. और once it is compact तो it means कि हर point का neighborhood किसी compact subset के अंदर lie कर रहा है. So this implies that R this together with the usual topology
is locally compact space which is not a compact space. Right, dear students? Dear students, we have a theorem that proves that every compact space is locally compact. So let's go for the proof. It is simple, it is trivial, but let's try. Let X star be a compact space. Let X belongs to X be an arbitrary point. Then every neighborhood n of X is contained in the compact space X. So this implies X is locally compact at each X belonging X. So this implies X is a locally compact space. Right, dear students? Okay, so it is a trivial proof. Dear students, here we have a theorem. Let f from x to y be an open continuous surjection. If x is locally compact, then prove that y is locally compact. This indicates that local compactness is a topological property. Dear students, कौन सी property topological property होती है? Dear students, उस property को topological property कहते हैं which is preserved under homeomorphism. अगर होम्योमॉर्फिज्म से लेस कंडीशन के ऊपर कोई चीज प्रिजर्व हो रही हो तो स्टिल इट इज प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म एंड देयरफॉर इट इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने कॉम्पैक्टनेस को देखा है कि वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. दैट इज कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट. इट मीन्स होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस थ्योरम में ये देखने लगे हैं कि जो लोकल कॉम्पैक्टनेस है वो भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. दैट इज इट इज प्रिजर्व्ड अंडर ओपन कॉन्टिन्यूस सरजेक्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द प्रूफ एंड लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम कि क्या हमें गिवन है और क्या हम प्रूव करना चाहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक्स स्टार एक्स एक स्पेस दी हुई है और ये एक्स स्टार एक्स जो है ये लोकली कॉम्पैक्ट है. सो इट इज गिवन दैट द स्पेस एक्स स्टार एक्स इज लोकली कॉम्पैक्ट. डियर स्टूडेंट्स, हमें एक स्पेस वाई टार वाई दी हुई है एंड दिस इज सिंपली ए टोपोलॉजिकल स्पेस. डियर स्टूडेंट, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम x टू y. डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन ओपन है. ओपन का मतलब यह है कि जब भी मैं x में ओपन सेट लूं तो उसके इमेजेस ओपन आते हैं. किस फंक्शन को ओपन कहते हैं? उसे ओपन कहते हैं कि f ऑफ u इज ओपन फॉर ओपन सेट u in x. जब भी मैंने u को x में ओपन लिया तो f ऑफ u जो है वो y में ओपन आया है. तो हमें पहली बात यह है कि f be an open. सेकंड, हमें ये दिया हुआ है कि दिस इज कॉन्टिन्यूस.
प्लस कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जब मैं y में ओपन सेट लूं तो उसके इनवर्स में ओपन आते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूस। f इनवर्स v is open in x for open set v in y। ओके, ओपन सेट के इनवर्स इमेजेस ओपन दिए हुए हैं। ओके, कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव। तीसरी बात हमें यह दी हुई है कि ये ऑन टू है। इसका मतलब है कि ऑन टू, इट मीन्स कि फॉर ईच y बिलोंगिंग y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग x सच दैट इस x का इमेज जो है वो y है। ऑन टू का मतलब यह है कि इस y के अंदर कोई एलिमेंट वेकेंट नहीं है, हर एलिमेंट इमेज है x की किसी न किसी एलिमेंट का। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज गिवन that this is on to. So these three informations about the function we are given, और एक information about the space we are given कि x locally compact है, function open है, continuous है, surjective है। तो फिर इन चार informations की basis पर हमने ये prove करना है कि जो space y टा y है ये भी locally compact है, then prove that y is locally compact. Okay, so dear students, let's go for the proof. हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि we shall prove that y टा y is locally compact. Right dear students, अब जिस स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं उसका हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि उसका नेबरहुड किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई करता है, किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई करता है। इस पॉइंट का नेबरहुड, आर्बिट्ररी पॉइंट, उसका नेबरहुड किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई करता है। अगर किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई करता है तो इसका मतलब है कि इसका जो भी पॉइंट लेते हैं वो किसी, उसका नेबरहुड किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के अंदर लाई करता है, तो स्पेस जो है वो लोकली कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं। लेट y belongs to y be an arbitrary point. Right dear students, since f is surjective, therefore there exists x belonging x such that, dear student, this f of x is equal to y. Okay dear students, now x belonging x and x is locally compact, therefore there exists some compact subspace, say C x
such that x belongs to ux, the neighborhood of x. This is contained in Cx, where ux is an open set containing x. Okay, containing x. Okay, dear students, so this ux is a neighborhood of x. That is, dear students, x belongs to ux and ux is contained in Cx, where Cx is compact subspace of this capital X. Okay, dear students, I just take it into the bracket. Dear students, I just apply function over here. मैं इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया कि हमारे पास चूंकि स्पेस x जो है ये लोकली कॉम्पैक्ट दी हुई है, लिहाजा इसमें जब भी कोई पॉइंट x आएगा तो उसका हमारे पास एक नेबरहुड ux आएगा, ux, और दिस नेबरहुड विल बी कंटेन्ड इन सम कॉम्पैक्ट सबस्पेस से Cx, राइट. तो ऐसा ही हमने किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, this implies that f of x belongs to f of ux and this is contained in f of Cx. Okay, now dear students, since f is continuous, what is f, dear students? We are given that f is continuous, open and onto. Since f is continuous, therefore continuous function की ये प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्पैक्ट सेट के इमेजेस कॉम्पैक्ट देती है. कंटिन्यूटी जो है वो कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट देती है. ओके, now since f is continuous, therefore f of Cx is compact subset of y, right dear students. चूंकि ये continuous है तो continuous image of a compact set is compact, right dear students. So f of Cx is compact. Moreover, ux is open in x and f is an open mapping. It is also given. So open mapping क्या करती है, dear students? ux is open in x and f is an open mapping. Therefore, dear students, क्या होगा? Therefore f of ux is an open set in y. Dear students, open mapping का काम ये है कि वो open sets के images open provide करती है. ओके, so thus हुआ ये है कि fx that is equal to y ने इस ओपन सेट को बिलोंग किया, विच इज द नेबरहुड ऑफ y and this is contained in compact set. Okay, this is neighborhood of y
this is an open set containing y, so this is a neighborhood of y, and this is contained f of cx, where f of cx is compact subset of y. So this implies that y is locally compact at y, since y was an arbitrary point therefore y is locally compact at each y belonging y. So this implies that y is a locally compact space. Okay, this completes the proof, dear students. राइट डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लोकल कॉम्पैक्टनेस को डिफाइन किया है और स्टडी किया है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप इसको completely अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड गुड लक टू यू।